નમસ્કાર, મહત્વના સમાચારો સાથે હું છું હેતવી અને અત્યારના મહત્વના સમાચાર પીએમ મોદી સુરત ખાતે પહોંચી ચૂક્યા છે। એના દ્રશ્યો પણ અમે આપને બતાવી રહ્યા છે। સુરતના લિંબાયતમાં ભવ્ય રોડ શો આજે વડાપ્રધાન શ્રી કરવાના છે। મહારિષિ આસ્તિક સ્કૂલથી નીલગિરી સર્કલ સુધી તેઓ રોડ શો કરશે। લગભગ 2.7 કિલોમીટરના રૂટ પર મેગા રોડ શો આ થવાનો છે। આ રોડ શો બાદ નીલગિરી સર્કલ ડોમ પર વિશાળ જનસભાને પણ સંબોધશે। પીએમ મોદીનો લિંબાયતમાં આજે ભવ્ય રોડ શો યોજાવાનો છે। તમામ તૈયારીઓ અને સાથે જ સુરતીવાસીઓમાં જે ઉત્સાહ છે વડાપ્રધાનશ્રીના આગમનને લઈને વિકાસની રમઝટનું આ મહાકવરેજ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પર આપ જોઈ રહ્યા છો। એક્સક્લુઝિવ તસવીરો પણ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી આપના સુધી પહોંચાડી રહ્યું છે। વડાપ્રધાન શ્રીનું આગમન થઈ ગયું છે સુરતના લિંબાયત વિસ્તારમાં અને લોકો જે રીતના મોટી સંખ્યામાં અહીંયા ઉપસ્થિત છે આપ જોઈ શકો છો। લોકોમાં ઘણો અનેરો ઉત્સાહ અનેરી ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। સુરતીવાસીઓ અત્યારે અદ્ભુત ખુશી સાથે પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે। વડાપ્રધાન શ્રીનું આજે જ્યારે આ ભવ્ય રોડ શો યોજાવાનો છે સુરતમાં આજે વિકાસની રમઝટ ચોક્કસથી જામવાની છે। પીએમ મોદીનો લિંબાયતમાં આજે ભવ્ય રોડ શો છે। રોડ શો બાદ નીલગિરી સર્કલ પર સભાને તેઓ સંબોધવાના છે। જંગી જનસભાને પીએમ મોદી સંબોધન કરવાના છે। સુરતી લાલાઓ અત્યારે આ રસ્તાઓ પર જોઈ શકાય છે, તેમના ચહેરા પરનો ઉત્સાહ જોઈ શકાય છે। ત્યારે સુરતના લિંબાયત વિસ્તારના આ જે દ્રશ્યો છે આખો રસ્તો અત્યારે મોદી મોદીના નારા સાથે ગુંજી રહ્યો છે। એક્સક્લુઝિવ તસવીરો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી આપને બતાવી રહ્યું છે। सूरतना लिंबायत में भव्य रोड शो आज वडाप्रधान श्री करશે। सड़कों पर आए हुए हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। गुजरात के विकास की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने एक स्वर्णिम इबारत विकास की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर लिखी है। प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने गुजरात के विकास को एक अलग दिशा दी, एक तीव्र गति दी और उसके बाद जब 2014 में प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री बने उसके बाद प्रधानमंत्री ने न सिर्फ भारत के विकास के लिए बल्कि गुजरात के विकास के लिए भी कई सारी ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर वहां पर लोगों को दे सकती थी, वो योजनाएं प्रधानमंत्री ने वहां पर दी हैं। विकास के कामों को आगे बढ़ाया और आज सूरत की अगर हम बात करें तो पहले अभी प्रधानमंत्री का सूरत में कार्यक्रम है, उसके बाद प्रधानमंत्री भावनगर जाएंगे, अहमदाबाद भी। फोन लाइन पर हमारी સાથે સંવાદદાતા કીર્તેશ અહીંયા જોડાયા છે। કીર્તેશ, સુરત ખાતે વડાપ્રધાન શ્રીનું આગમન થઈ ચૂક્યું છે અને સુરતીવાસીઓમાં અત્યારે અનેરો ઉત્સાહ છે। વડાપ્રધાન શ્રીના આગમનને લઈને તેઓ ઘણા ખુશ જણાઈ રહ્યા છે। હાલ કેવો માહોલ છે? બિલકુલ એવી દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારથી સુરતના લોકો સાથે એક પ્રેમભર્યો અનેરો સંબંધ હતો અને 2017ની ચૂંટણીમાં લિંબાયતના નીલગિરી સર્કલ ખાતેથી તેમને ચૂંટણીની કહી શકાય સભા સંબોધ્યા બાદ 5 વર્ષ બાદ સુરત આવતા એટલે કે સુરતના સુરતીઓ આતુરતાથી દેશના વડાપ્રધાનની રાહ જોઈ રહ્યા હતા। થોડીક જ મિનિટો પહેલા દેશના વડાપ્રધાન સુરત એરપોર્ટ પર ઉતર્યા બાદ હેલિકોપ્ટર દ્વારા ઘોડાદરા પહોંચ્યા છે અને ઘોડાદરાથી તેઓ 2.5 કિલોમીટરનો રોડ શો કરીને લિંબાયતના નીલગિરી ખાતે પહોંચે કે ત્યાં તેમને સાંભળવા માટે 2 લાખ કરતા વધુ જનમેદની ઉમટી પડી છે। જોકે લિંબાયતના ઘોડાદરા ખાતેથી દેશના વડાપ્રધાનનો રોડ શો શરૂ થઈ ચુક્યો છે લિંબાયતના નીલગિરી સર્કલ ખાતે આવવા માટે। ખાસ કરીને દેશના વડાપ્રધાન જયારે ઘોડાદરાથી નીકળ્યા છે ત્યારે રસ્તામાં 30 જગ્યા ઉપર અલગ અલગ સમાજના આગેવાનો દ્વારા તેમને ફૂલ વર્ષા કરી તેમનું સ્વાગત અને અભિવાદન કરવાના છે। ત્યારે લોકોમાં અનેરો ઉત્સાહ છે। છેલ્લા કેટલાક કલાકથી લોકો દેશના વડાપ્રધાનની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા। તે આતુરતાનો અંત આવ્યો છે અને દેશના વડાપ્રધાન પોતાની સિક્યોરિટી સાથે તેમની ગાડીમાં પહોંચ્યા છે। લોકો વચ્ચે લોકોનું અભિવાદન કરી રહ્યા છે અને લોકો ઉમળકાભેર તેમનું સ્વાગત કરતા જોવા મળી રહ્યા છે। કીર્તેશ, આજે વિકાસની રમઝટ જામવાની છે સુરતમાં કારણ કે વિવિધ વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ હોય કે ખાતમુહૂર્ત હોય વડાપ્રધાન શ્રી આજે કરવાના છે, જેને લઈને સુરતી લાલાઓ શું કહી રહ્યા છે? બિલકુલ, મેં પહેલા જ કીધું એમ દેશના વડાપ્રધાનને સુરત સાથે એક અનેરો નાતો છે।
સુરત આમ તો ઔદ્યોગિક શહેર કહેવાય છે. ડાયમંડ અને ટેક્સટાઇલ આ બે મહત્વના ઉદ્યોગ છે. ત્યારે ડાયમંડ ઉદ્યોગ વિશ્વમાં પોતાની એક ચમક છે, એ ચમક વધુ ચમકાવે તે માટે દેશના વડાપ્રધાને એક ડ્રીમ એટલે કે સપનું જોયું હતું ડ્રીમ સિટીનું, અને એ સપનું આજે સાકાર થઈ ગયું છે. સુરતના છેવાડા પર આવેલા કજોદ ખાતે એક હીરાબુજનું નિર્માણ થયું છે. તેથી સુરતમાં તૈયાર થતો, ગુજરાતમાં તૈયાર થતો ડાયમંડ જો અહીંયાથી વિદેશના અલગ અલગ દેશોમાં જઈ શકે. ખાસ કરીને આ કારણોને લઈને ડ્રીમ સિટી બનાવવામાં આવ્યું હતું કે એના પહેલા ફેઝનું કામ પૂર્ણ થયું છે. અત્યંત આધુનિક સવલતો સાથે તૈયાર થયેલી આ ડ્રીમ સિટીનું પણ લોકાર્પણ દેશના વડાપ્રધાન કરવાના છે. તે સાથે ગાર્ડન, ક્વિક રિસ્પોન્સ સેન્ટર, પાણી યોજના છે, ગટર યોજના છે, કહી શકાય ઇલેક્ટ્રિક બસો છે. એટલે કે 3,400 કરોડના વિકાસના કામોની આજે લાવણી થવાની છે. ખાસ કરીને લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત થવાનું છે. ત્યારે સુરતના વિકાસમાં સૌથી મોટો ચાર ચાંદ લાગશે, કારણ કે સુરતનો વિકાસ એવો છે ગુજરાતમાં સૌથી વધારે વિકસિત થતું શહેર છે. અને દેશના વડાપ્રધાન કોઈ પણ રાજ્યમાં જયારે વિકાસની વાત કરે છે ત્યારે તેમના મોઢે સૌથી પહેલા નામ સુરતનું હોય છે. એટલે કે સુરત સાથેનો તેમનો અનેરો નાતો છે. અને જયારે તેઓ સુરત આવતા હોય છે અને સુરતીઓ તેમનું સ્વાગત ના કરે તે માનવામાં આવતું નથી. દેશના વડાપ્રધાનના સ્વાગત માટે છેલ્લા કેટલાક દિવસથી તૈયારીઓ ચાલી રહી હતી, અને જ્યારે લોકોનું અભિવાદન કરવા માટે દેશના વડાપ્રધાન જોડાસાથી લિંબાયત જવા નીકળ્યા છે, ત્યારે સુરતના લોકો મોટા પ્રમાણમાં તેમનું સ્વાગત કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. બિલકુલ કીર્તેશ, જંગી જનસભાને પણ આજે વડાપ્રધાન શ્રી સંબોધવાના છે. આશરે કેટલી જનમેદની આ સભામાં ઉમટી શકે છે, અને સાથે વડાપ્રધાન શ્રીનું જ્યારે સુરત ખાતે આગમન થયું છે, અન્ય કયા વિશેષ મહેમાનોની પણ ઉપસ્થિતિ જોવા મળી છે? બિલકુલ, સુરત સાથે પહેલાથી તો અનેરો નાતો છે. 2017માં ચૂંટણી સમયે દેશના વડાપ્રધાને સુરતના લિંબાયતના આ જ ખાતેથી સભાને સંબોધી હતી અને ચૂંટણી પ્રચારની શરૂઆત કરી હતી. જોકે 2022માં વિધાનસભાની ચૂંટણીની તૈયારીઓ થઈ ચૂકી છે, પણ સત્તાવાર તેની તારીખ જાહેર पॉपुलैरिटी की बात करें तो वो विश्व के तकरीबन हर नेता को वो पीछे छोड़ते हुए सबसे टॉप पर इस वक्त हैं. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रशासनिक जीवन की शुरुआत गुजरात से की है. एक मुख्यमंत्री के तौर पर एक लंबा समय उन्होंने गुजरात को दिया है और गुजरात के विकास को एक नई दिशा दी है. गुजरात के विकास को तेज किया है और उसका असर साफ तौर पर तब देखा जाता है जब प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर जाते हैं. जब प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर जाते हैं, इसी तरह सड़क के दोनों ओर लोग अपने घरों से निकल कर आते हैं, दूर दराज से लोग वहां पर पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं. और आज भी यही दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं. ये दृश्य सब कुछ बयां कर रहे हैं कि किस तरह से गुजरात के लोग अपनी गुजरात की जमीन के लाल का यहां पर स्वागत कर रहे हैं. ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं. हजारों की संख्या में लोग जमा हैं वहां पर सड़क के दोनों ओर, और प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे अब सभा स्थल की ओर बढ़ रहा है. भारत के विभिन्न अंचलों की सांस्कृतिक पोशाकों को पहनकर वहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिर्फ गुजरात की पहचान नहीं है, बल्कि वो भारत की पहचान बन चुके हैं. विश्व के टॉप नेताओं में उनका नाम शुमार हो चुका है. उन्होंने पूरी दुनिया में भारत को एक अलग पहचान दी है और इसी का असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है. धीरे धीरे प्रधानमंत्री का काफिला सभा स्थल की ओर बढ़ता हुआ, सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं. प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं. और प्रधानमंत्री का 2 दिन का ये गुजरात का दौरा है. शुरुआत प्रधानमंत्री ने सूरत से की है, इसके बाद प्रधानमंत्री भावनगर जाएंगे, बाद में अहमदाबाद में भी उनके कार्यक्रम है, अंबाजी भी प्रधानमंत्री जाएंगे. और सबसे मुख्य बात यह है कि ये वक्त नवरात्रों का वक्त है, और नवरात्रि की अगर हम बात करते हैं और गुजरात की अगर बात करते हैं तो एक अलग छटा गुजरात में देखने को मिलती है. नवरात्रि की धूम देखने को मिलती है, गरबे की धूम देखने को मिलती है. पूरा गुजरात विभिन्न रंगों से
सजा हुआ होता है। गुजरात के जो लोग हैं, गुजरात के स्त्री पुरुष हैं, वो विभिन्न रंगों में सजे हुए होते हैं। और आपको ये भी बता दें कि आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नवरात्रि के कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं और साथ ही साथ अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत भी होने वाली है। प्रधानमंत्री उसका भी उद्घाटन करेंगे। और फिलहाल ये सूरत के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और मोदी मोदी के नारे वहां पर लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से सज धज कर वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। एक शख्स को आप अभी कुछ देर पहले देख रहे थे जिन्होंने अपने शरीर पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाई हुई है और उत्साह यहां पर देखते ही बन रहा है लोगों का। हजारों की संख्या में लोग सड़क के दोनों ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ हिलाकर स्वागत कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रधानमंत्री का काफिला सभा स्थल की ओर बढ़ता हुआ और हम आपको सड़क के दोनों ओर के दृश्य दिखा रहे हैं जहां पर हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे हैं। सूरत की अगर हम बात करें तो 3,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां पर प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। और अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री 29,000 करोड़ रुपए की सौगात गुजरात को देने जा रहे हैं। જે રીતે જોઈ શકાય છે સુરત ખાતે મોટી સંખ્યામાં અત્યારે લોકો ઉપસ્થિત છે વડાપ્રધાનશ્રીના રોડ શોમાં। साफ तौर पर इसका भी असर देखा जा सकता है कि जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होती है या जो डबल इंजन की बात करते हैं, गुजरात में भी उसका असर देखा जा सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन हैं और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2014 से पहले, तो वो गुजरात को अच्छी तरह समझते हैं। गुजरात की क्या कुछ ज़रूरत है ये उनको अच्छी तरह मालूम है। और इसी का असर है कि पिछले सालों में हमने देखा कि समय समय पर गुजरात पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के लोगों की जो ज़रूरत है, वहां की इंडस्ट्री की जो ज़रूरत है, वो पूरा करते रहते हैं। तो आज यहां पर अगर हम सूरत की बात करें तो सूरत में प्रधानमंत्री का जो मुख्य कार्यक्रम है वहां पर 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास वहां पर होना है। और इनमें सूरत के विज्ञान केंद्र में खोज संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, बायोडायवर्सिटी पार्क की आधारशिला रखेंगे, डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल ड्रीम सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार का उद्घाटन करेंगे और सूरत शहर के लिए जल आपूर्ति, जल निकासी परियोजनाओं, जैव विविधता पार्क सहित कई परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। और मेघना देव हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। मेघना, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह का उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सूरत में है। सड़कों के दोनों ओर हजारों की संख्या में लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। सभा स्थल पर एक बड़ी भीड़ उनका इंतजार कर रही है। क्या कुछ देख रही हैं आप वहां पर?
બિલકુલ જે રીતે જોઈ શકાય છે મોટી સંખ્યામાં અત્યારે રસ્તાઓની બંને બાજુ પર લોકોની ભીડ જામી છે। વડાપ્રધાનશ્રીના આ રોડ શોમાં તમામ લોકો અત્યારે મોદી મોદીના નારા લગાવી રહ્યા છે અને વડાપ્રધાનશ્રી પણ લોકોનું અભિવાદન ઝીલી રહ્યા છે। पहचान की मोहताज नहीं है, इसकी पहचान मैं तो ये कह सकती हूँ कि गांधीनगर से भी बड़ी है। भले ही गांधीनगर राजधानी हो, लेकिन यहाँ पे जब लोग पहुँचते हैं तो अलग ही महसूस करते हैं। फिर से मैं चाहूंगी कि तस्वीरें आपको जरा एक बार फिर से दिखाऊं और ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। બિલકુલ, તો જે રીતની આજે વિકાસની રમઝટ જોવા મળશે સુરતના સુરતી લાલાઓને વિવિધ વિકાસ કાર્યોની ભેટ આજે વડાપ્રધાનશ્રી આપવાના છે। આપ જોઈ શકો છો મોટી સંખ્યામાં રસ્તાઓ પર લોકોની ભીડ ઉમટી છે। વડાપ્રધાનશ્રીના આ રોડ શોમાં જોડાય છે લોકો। આ રસ્તાઓ પર મોદી મોદીના નારા લગાવી રહ્યા છે અને વડાપ્રધાનશ્રી પણ તમામ લોકોનું અભિવાદન ઝીલી રહ્યા છે। સુરત ખાતે અત્યારે આ ભવ્ય રોડ શો અત્યારે તેના સીધા દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છે। લોકોની મોટી સંખ્યામાં ભીડ આ રસ્તા ઉપર જોવા મળી રહી છે। તો બીજી બાજુ ટૂંક જ સમયની અંદર હવે વડાપ્રધાનશ્રી સભા સ્થળ ખાતે પહોંચશે અને ત્યાં પણ મોટી સંખ્યામાં જનમેદની ઉમટી છે વડાપ્રધાનશ્રીને સાંભળવા માટે। કરોડોના વિકાસ કાર્યોની ભેટ આજે સુરતની આ જનતાને મળવા જઈ રહી છે। વડાપ્રધાનશ્રી 2 દિવસના ગુજરાત પ્રવાસ પર છે અને આ પ્રવાસની શરૂઆત સુરતથી થઈ છે। સુરતી લાલાઓમાં અનેરો उत्साह છે। જ્યાં નજર પડે ત્યારે ત્યાં સુરતવાસીઓ मिलने वाली है या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच मैं चाहूंगी कि जरा फिर से मैं लोगों के बीच में चलूं और लोग अगर कुछ कह पाए, कुछ मोदी के बारे में बड़ी बातें कह पाए तो भावनाएं भी मैं दिखा पाऊं। तो मैं चलती हूँ इधर और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ कि इनकी क्या भावना है, इनकी क्या फीलिंग है, नरेंद्र मोदी को लेकर ये क्या सोचते हैं। ये बड़ी बातें मैं इस वक्त पूछती हूँ दर्शकों। आज प्रधानमंत्री पहुंचे, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। यहाँ आए हुए हैं मोदी जी, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम उनको दिल से चाहते हैं। दिल से चाहते हैं जी। और भी नेता आ रहे हैं यहाँ पे, कोई फर्क पड़ता है? नहीं, मेरे से मोदी जी से फर्क है। हाँ। ओके, वो हमारे लिए बहुत अच्छा, गरबा के वक्त में पीएम यहाँ पे आए हैं, कैसा लग रहा है गरबा के वक्त में आने पे? बहुत बढ़िया लग रहा है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और हमको तो इतनी खुशी है कि मोदी हमारे गांव में घोड़ादरा में आए। पूरा जंगल था, अभी पूरा स्वस्थ हो गया है। हमको अब आप सुन सकते हैं कितनी बड़ी बात और कितनी अच्छी बात है कि पूरा इलाका जो है वो जंगल था। इनकी भावना है कि इस जंगल को इतना खूबसूरत बना दिया है, यही कहना है आपका? हाँ। बहुत खुशी हमको तो मोदी को देखने का बहुत खुशी था। सुबह से आ गए 8 बजे से यहाँ देखा ना? हाँ, देख वो आप लिया, लोगों को ऐसे हाथ मिला रहे थे। कर दिया। बहुत अच्छा लगा। मैडम बहुत अच्छा लगा। उनकी इतनी सारी योजना है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा जो इस योजना का लाभ नहीं उठा रहा है। अच्छा, मैं सूरत के बारे में जानना चाहूँ तो सूरत में क्या आप लोगों को अलग मिलता है यहाँ पे? यहाँ पे मैडम हमें सारी व्यवस्था मिलती है, दवाई पानी से लेके खाना पीना से लेके यहाँ तक के कोरोना में हमें क्या नहीं मिला है। राशन पानी से लेके हर एक जितने भी हॉल मॉल सब है, इसमें हमें खाने की व्यवस्था, यहाँ से घर घर जाने की व्यवस्था सारी करके दी है। वो हम लोग भी देख रहे हैं। दोनों डोज और तीसरा डोज अभी फिर आ गया, उसका मैसेज आता है हमारे पास। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? ये आम पब्लिक या बातें सुन रहे हैं, उनका कहना है कि हमें सब मिला है, हमें सब दिया गया है। मैं चाहूंगी कि कुछ और लोगों से भी बात करूं, क्योंकि लोग बात करना भी चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे और वो तो आपके गुजरात के हैं, कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा, हम बहुत खुश है। और 2024 में पे बड़ी संख्या में लोग वहां पर उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एयरपोर्ट से निकल के प्रधानमंत्री मोदी अपने गंतव्य स्थल के लिए जिस सड़क से जा रहे हैं, उस सड़क के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से वहां पर हुजूम उमड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर स्वागत कर रहा है और प्रधानमंत्री के द्वारा भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन वहां पर स्वीकार किया जा रहा है। 3400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण यहां पर प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इनमें जल आपूर्ति, जल निकासी परियोजनाओं, ड्रीम सिटी, जैव विविधता पार्क और अन्य सार्वजनिक बुनियादी सुविधाएं, इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त विकास कार्य यहां पर शामिल हैं। तो कहीं न कहीं जो केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने का फायदा गुजरात के लोगों को लगातार मिलता रहा है,
और आज भी हम देख रहे हैं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त विकास कार्य यहाँ पर कई हैं जिनका प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे, गुजरात की जनता को समर्पित करेंगे। तो फिलहाल हम आपको ये दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे उनका काफिला सभा स्थल की ओर बढ़ रहा है और ये दृश्य आप देखिए, सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वहां पर जुटे हुए हैं। कुछ देर पहले हमारी संवाददाता मेघना देव से हम बात कर रहे थे, तो वहां पर लगातार बनी हुई हैं। वो बता रही थी कि सवेरे 5:30 बजे से लोग यहां पर आना शुरू हो गए थे, सड़कों के किनारे एकत्र होना शुरू हो गए थे। ये आप देख सकते हैं, भारी संख्या में लोग सभा स्थल पर पहुंच रहे हैं इस वक्त और ये प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे सभा स्थल की ओर बढ़ता हुआ, हजारों की संख्या में लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। और अगर हम गुजरात की बात करें तो ये नवरात्र का वक्त है और नवरात्र के वक्त में गुजरात एक अलग छटा बिखेरता है। गुजरात में नवरात्र विशेष तरीके से मनाया जाता है। यहाँ पर गरबा उत्सव आयोजित किए जाते हैं और गुजरात के जो स्त्री, पुरुष, युवा, बुजुर्ग रंग बिरंगे परिधानों में सजे होते हैं इस वक्त। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं गुजरात के विभिन्न इलाकों की सांस्कृतिक पोशाक पहनकर लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। न सिर्फ गुजरात के विभिन्न इलाकों बल्कि देश के विभिन्न राज्यों की पोशाक पहनकर भी यहाँ पर लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं, ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, एक अलग उत्साह यहाँ पर लोगों के अंदर प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर देखा जा रहा है। 2 दिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है गुजरात का। प्रधानमंत्री अभी इस वक्त सूरत में कुछ ही देर में सूरत वासियों को विकास की सौगात देंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री भावनगर जाएंगे और भावनगर में भी प्रधानमंत्री का काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उसके बाद आज शाम को ये आप देख सकते हैं, ये दृश्य आप देखिए, ये गुजरात वासियों का प्रधानमंत्री के प्रति प्यार और प्रधानमंत्री का गुजरात के प्रति प्यार यहाँ पर साफ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री सभा स्थल पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रशासनिक जीवन की शुरुआत गुजरात से की है। लंबे समय तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने गुजरात को एक नई दिशा दी, गुजरात के विकास को तेज गति से आगे बढ़ाया। न सिर्फ तेज गति से आगे बढ़ाया बल्कि समय के अनुसार गुजरात के विकास को जिस परिवर्तन की जरूरत थी वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर करके दिखाया। और उसके बाद 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बने, तो पूरे देश में प्रधानमंत्री जहां कहीं भी जाते हैं, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी जाते हैं तो प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री जब गुजरात जाते हैं तो उसकी एक अलग बात होती है, क्योंकि हर गुजरातवासी प्रधानमंत्री को कहीं न कहीं अपने साथ जोड़ता है। જોઈ શકાય છે વડાપ્રધાન શ્રી અત્યારે સભા સ્થળ ખાતે પહોંચી ચૂક્યા છે અને આસપાસ લોકોની જે સંખ્યા છે એ જ કહી જાય છે કે આજે આખું સુરત મોદીમય બની ગયું છે। ચારે બાજુથી મોદી મોદીના નારા લાગી રહ્યા છે અને વડાપ્રધાન શ્રી પણ લોકોનું અભિવાદન ઝીલી રહ્યા છે। મોટી સંખ્યામાં સભા સ્થળ ખાતે લોકોની જનમેદની ઉમટી છે। વડાપ્રધાન શ્રીને સાંભળવા માટે અહીંયા મોટી સંખ્યામાં વહેલી સવારથી જ લોકો આવી રહ્યા છે। ड्रीम सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री यहाँ पर करेंगे। फिलहाल मोदी मोदी के नारों के साथ प्रधानमंत्री का वहाँ पर स्वागत किया जा रहा है।
नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा फायदा जो गुजरात को ये हुआ कि जो आज की तारीख में कई राज्यों को ये फायदा होता है, जहां पर केंद्र में भी और राज्यों में भी एक ही पार्टी की सरकारें हैं, तो इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। और यही फायदा गुजरात को नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है। केंद्र की कई सारी योजनाएं जो पहले नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहने के दौरान किन्हीं कारणों से, चाहे वो राजनीतिक कारण रहे हों या कुछ अन्य कारण हों, जो गुजरात के लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी, जो योजनाएं, जिन योजनाओं का फायदा वहां तक नहीं पहुंच पाया था, प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की उन योजनाओं का फायदा भी गुजरात के लोगों को दिया है। और साथ ही साथ जो डबल इंजन की थ्योरी है, यानी कि जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होती है, तो केंद्र और राज्य की योजनाओं को मिलाकर किस तरह से जन कल्याण में उसका उपयोग किया जाता है, एक परफेक्ट उदाहरण गुजरात में देखने को मिलता है। हालांकि आज की तारीख में भारत के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इस तरह के राज्यों को एक अलग फायदा होता है। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है और देश के हर कोने के विकास में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। और उन राज्यों को भी इसका फायदा होता है, क्योंकि जहां पर डबल इंजन की थ्योरी की जब हम बात करते हैं, तो जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होती है तो प्रशासनिक तौर पर इसका फायदा मिलता है। फिलहाल प्रधानमंत्री का स्वागत वहां पर हो रहा है। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में गुजरात के स्त्री, पुरुष, युवा, बुजुर्ग यहाँ पर इस रैली में पहुंचे हुए हैं। 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री हैं और अपने गुजरात दौरे की शुरुआत उन्होंने यहाँ सूरत से की है और इस वक्त वो सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। सभा स्थल पर भी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि जब एयरपोर्ट से निकलकर सभा स्थल तक प्रधानमंत्री का काफिला आया था, तो सड़कों के दोनों ओर हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए हमने आपको दिखाए, वो दृश्य हमने आपको दिखाए। और फिलहाल प्रधानमंत्री सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। यहां पर प्रधानमंत्री करीब 3400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। और इन परियोजनाओं की अगर बात करें तो इनमें जल आपूर्ति, जल निकासी परियोजनाओं, ड्रीम सिटी, जैव विविधता पार्क और कई अन्य सार्वजनिक बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं। इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो संयुक्त विकास कार्य किए जाते हैं, यानी कि ऐसे विकास कार्य जिनमें केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका होती है, वो परियोजनाएं भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत के लोगों को समर्पित करने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी गुजरात जाते हैं उनका इसी तरह स्वागत होता है। ये दृश्य हम अपने टेलीविजन पर लगातार देखते रहे हैं और उसका कारण ये है कि हर गुजरातवासी प्रधानमंत्री के अंदर अपने को देखता है। फिलहाल प्रधानमंत्री सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहां पर विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, सूरतवासियों को संबोधित भी करेंगे।
अब बस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का वहां पर इंतजार किया जा रहा है। ફરી એકવાર સુરત મહાનગરપાલિકા અને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર સુરત આપ સર્વે ઉપસ્થિતોનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરે છે। રૂપિયા 3472.54 કરોડના ખર્ચે સાકારિત થયેલા અને સાકારિત થનારા વિવિધ પ્રકલ્પોનું ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ આપના સૌના લાડીલા માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વરદ હસ્તે થવાનું છે। માન્ય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું બસ થોડીક ક્ષણોમાં હવે મંચ પર આગમન થશે। આપ સૌ આપનું સ્થાન ત્વરિત જાળવી લેશો। तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आने वाले हैं और सूरतवासियों को एक बड़ा तोहफा आज मिलने वाला है। 3400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण वहां पर प्रधानमंत्री करने वाले हैं। બસ ગણતરીની ક્ષણોમાં હવે માન્ય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું અહીં મંચ પર આગમન થશે। चौंतीस 3400 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की अगर हम बात करें तो इनमें सूरत शहर के लिए जल आपूर्ति, जल निकासी परियोजनाओं, जैव विविधता पार्क सहित कई परियोजनाएं इनमें शामिल हैं। साथ ही साथ डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल, जिसको हम ड्रीम सिटी कह रहे हैं, उसके मुख्य प्रवेश द्वार का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। बायोडायवर्सिटी पार्क की आधारशिला रखेंगे। सूरत के विज्ञान केंद्र में खोज संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। 2 दिन का गुजरात दौरा है प्रधानमंत्री का। सूरत से इसकी शुरुआत हुई है। इसके बाद प्रधानमंत्री का भाव तैयार છીએ આપણા સૌના લાડીલા પ્રધાનમંત્રીશ્રીના મંચ પર સ્વાગત માટે। આપણે સાથે મળીને આપણી અવિરત તાળીઓના નાદથી એમનું સ્વાગત કરીશું। सूरत के बाद प्रधानमंत्री का भावनगर दौरा है। भावनगर में भी प्रधानमंत्री विकास कार्यों का तोहफा गुजरात के लोगों को देने वाले हैं। शाम को अहमदाबाद में प्रधानमंत्री होंगे, जहां पर राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत प्रधानमंत्री के करकमलों द्वारा होगी। પુણ્યસલીલા તાપી મૈયાના તટે ઉછરેલા અને અવિરત વિકસી રહેલા સુરત મહાનગરના પાવન આંગણે કુલ રૂપિયા 3472.54 કરોડના વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત આજે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વરદ હસ્તે થવા જઈ રહ્યું છે। ત્યારે સુરત મહાનગરપાલિકા અને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર સુરત આપ સર્વે ઉપસ્થિતોનું ફરી અને ફરી હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરે છે। तो पूरे 2 दिन के गुजरात दौरे की अगर हम बात करें तो 29,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं गुजरात के लोगों को समर्पित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। આવો આપણે સૌ સજ્જ થઈએ આપણા સૌના લાડીલા આપણા સૌના માનીતા વડાપ્રધાન શ્રીના અહીં મંચ પર આગમન માટે। तो बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचने वाले हैं। नवरात्र का वक्त है। गुजरात में विशेष तौर पर ये पर्व मनाया जाता है। गरबा उत्सव यहां मनाया जाता है और प्रधानमंत्री आज शाम को अहमदाबाद में एक नवरात्र के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इस वक्त इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कुछ ही देर में वो मंच पर पहुंचने वाले हैं। और अगर हम भावनगर की बात करें तो इसके बाद प्रधानमंत्री भावनगर पहुंचेंगे। 5200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का वहां पर उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया के प्रथम सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड बंदरगाह की वहां पर आधारशिला रखी जाएगी। इस बंदरगाह को 4000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा, जो दुनिया के चौथे सबसे बड़े लॉक गेट सिस्टम के साथ दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा होगा।
તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 2 દિવસ ગુજરાતના પ્રવાસે છે। સુરતમાં અનેક વિકાસ પરિયોજનાઓની ભેટ આપવાના છે। સુરત અને ભાવનગરમાં અનેક પરિયોજનાઓનું લોકાર્પણ કરશે। પહેલા સંઘ અને પછી ભાજપને અનેક સ્થળોએ મજબૂત કરનાર નરેન્દ્ર મોદીએ અનેક કામ કર્યા છે। ત્યારે આ અવસરે જુઓ નરેન્દ્ર મોદીથી સુરત અને ભાવનગરના જોડાયેલા પ્રસંગો। भावनगर में भी आते थे कभी संघ। मैं यहाँ नगर कार्य हुआ था। संघ शिक्षा वर्ग और हमारे दीपावली में दीपावली वर्ग होता था। मैं करीबन 20 दीपावली वर्ग का मुख्य संचालक था। तो 2 वर्ग में नरेंद्र मोदी जी आए थे। एक वर्ग था यहाँ पालीताना, हमारा प्रख्यात जैन टेम्पल शहर। तो वर्ग स्थान से जो शाखा का स्थान था वो 4 किलोमीटर दूर था। तो हमने सोचा भी नरेंद्र भाई को मोटर में बिठा कर वहाँ पर ले जाइए, बाकी स्वयंसेवक को ऐसे रिक्शा में लीजिए। तो उसने बोला नहीं, मैं चल कर आऊँगा। पूरी बाजार में चल कर आए और बाकी स्वयंसेवक भी सब आए 4 किलोमीटर तक। उतने की दृढ़ निश्चय थे। हमने पहले बोला नरेंद्र भाई बहुत दूर है, सब थक जाएंगे, इसमें बाल स्वयंसेवक भी थोड़े हैं, करने के उसको व्यवस्था कर दो, मैं चल के आऊँगा। फिर हम सब चल के गए थे। 2006 अगस्त में सूरत में महाविनाशकारी फ्लड आया और पूरा शहर में पानी भर गया। हम लोग अभी तो काम शुरू ही किया था। उस दिन अचानक समाचार आया कि सीएम साहब आदरणीय नरेंद्र भाई सूरत आ रहे हैं। सीएम साहब ने ऑर्डर दिया कि मुझे सबसे वर्स्ट एरिया जहाँ है वहाँ ले चलो। ऊपर साहब देखते थे तो ऊपर से लोग वो खाली बर्तन दिखाते थे साहब को, मतलब पानी का, कि पानी का सप्लाई गई कल से नहीं है। जहाँ कंट्रोल रूम था वहाँ पे उस दिन नरेंद्र मोदी साहब आए। साहब ने जैसे ही चर्चा शुरू की तो पीछे से प्यून पीने का पानी लेके आया। तब मोदी साहब ने अपने सामने रखा हुआ ग्लास ऐसे हाथ से दूर करते हुए बोला कि सूरत की जनता जब तक पानी नहीं पिएगी तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। जो काम 48 घंटे में होना था वो 24 घंटे में हो गया। सूरत में आए 1987 में इलेक्शन, उनको वार्ड नंबर 1 का चार्ज में दिया था कि भाई इनको जिताने का है। जब वो आए कार्यकर्ता 15-20 थे, वो आके बोले बस इतना भी कार्यकर्ता काफ़ी है, एक मजबूत टीम बनाओ और मजबूत टीम बनाओगे तो इलेक्शन आप जीत सकते हो। फिर उन्होंने बोला कि अपना पेड़, आम का पेड़ अभी छोटा है, जब बड़ा होगा पेड़ तब इतने आम आएंगे। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी का भी फैलाव होगा। वो सोचते थे कि पहले कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, पार्टी को कैसे डेवलप करना है, उनके दिमाग में वही चलता था। जब नरेंद्र भाई मोदी दक्षिण गुजरात के प्रचारक रहे थे तो वो प्रचार के नाते जब प्रवास करते थे, कुछ सूरत में आते थे, तब मैं संपर्क में रहता था उनका। मगर उनका प्रवास खूब झड़प से रहता था। निश्चित प्रवास के लिए आते थे, नहीं समय सर आते, और जिसको मिलना था उनको मिलकर प्रवास करके वो तुरंत वापस चले थे। महानगर का प्रवास 1 दिन रहता था, मगर सूरत जिला तब खूब बड़ा था। तो सूरत जिला में अगर जाना है तो बारडोली वगैरह, जो व्यारा वगैरह जाना है तो पहले दिन तय करके भाई इस दफा सूरत में नहीं रहूंगा, व्यारा जाऊंगा, बारडोली, ऐसा प्रवास उनका रहता था। कार्यकर्ताओं को मिलना और बैठक करना, जिला कार्यकारिणी की बैठक, महानगर की कार्यकारिणी बैठक, ऐसी बैठक की में रहती। हम लोग भी भावनगर से 60 कार्यकर्ता वहाँ पे अहमदाबाद और फिर गांधीनगर वाला जो है वो आवेदन पत्र के लिए राज्यपाल भवन तक गए थे कुछ करके। वहाँ पे कार्यक्रम होने के बाद बारिश इतनी हो गई कि भावनगर आने का मार्ग बंद हो गया। तो हमने बावला में 2 दिन वहाँ पे रुक के फिर हम लोग अहमदाबाद आए और थोड़े कार्यकर्ता संघ कार्यालय पे, थोड़े कार्यकर्ता परिषद कार्यालय पे रुक के, तो हम लोग संघ कार्यालय पे गए थे। वहाँ पे नरेंद्र भाई और लक्ष्मण राव इनामदार जी वहाँ थे। तो तुरंत
उसी दिन से दूसरे दिन हम लोग पहुंचे थे, उसी दिन से हमने पूर्व राहत का काम चालू किया। उनका सब प्लानिंग नरेंद्र भाई मोदी ने किया और अहमदाबाद और हम सब कार्यकर्ता जुट के हमने पूर्व राहत का करीबन 1 महीना तक काम किया। नरेंद्र भाई मोदी का माइक्रो प्लानिंग इतना खूबसूरत रहता था और काम पूरा होने तक वो सबका इंतजार करते थे और बाद में हम सब साथ में मिलकर खाना खाते थे। साथ અને સૌના વિશ્વાસથી વિકાસનું વહન કરતું ગુજરાત, પડકારોને ઝીલીને સતત આગળ વધતું ગુજરાત, ઉન્નત વિકાસ કાર્યોને અવિરત સાકાર કરતું ગુજરાત, જન સુખાકારી માટે હર હંમેશ પ્રતિબદ્ધ ગુજરાત, મારું તમારું આપણા સૌનું ગુજરાત, આગવું ગુજરાત. છેલ્લા 2 દાયકાથી પ્રશસ્ત ગુજરાતની વિકાસ યાત્રા નિત નવા સફળતાના શિખરો સર કરી રહી છે. સ્માર્ટ સિટીના પંથે અવિરત અગ્રેસર સુરત શહેરમાં આજે આપણે વિશ્વાસથી વિકાસની યાત્રાને સાચા અર્થમાં સાકારિત થતી જોઈ રહ્યા છે. ત્યારે આજના અદકેરા પ્રસંગે સ્વાગત પ્રવચન માટે સાદર આમંત્રિત કરીએ ગુજરાતના લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને. डायमंड सिटी तथा टेक्सटाइल सिटी तरीके जग विख्यात स्मार्ट सिटी सूरत खाते सूरत महानगरपालिका तथा जिला वहीवटी तंत्र द्वारा आयोजित विविध प्रजालक्षी कार्यों लोकार्पण तथा खातमुहूर्त प्रसंगे अपनी सौनी साथे मंच पर उपस्थित सर्वांगी विकासना प्रहरी विश्वना सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदी साहेब, नवसारीना सांसद तथा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री CR पाटिल जी, केंद्रीय मंत्री श्री दर्शनाबेन जरदोश, मारा साथी मंत्री श्री पूर्णेशभाई मोदी, कनुभाई देसाई, हर्षभाई संघवी, विनोदभाई मोरडिया, मुकेशभाई पटेल, मेयर श्री हेमालीबेन भोगावाला, सांसद श्री प्रभुभाई वसावा, जिला पंचायतना प्रमुख श्री भावेशभाई, मारा साथी धारासभ्य श्री અને પૂર્વ મંત્રી શ્રી ગણપતભાઈ વસાવા, પૂર્વ મંત્રી શ્રી ઈશ્વરભાઈ પરમાર, શ્રી પ્રવીણભાઈ ગોગારી, વીડી ઝાલાવાડિયા, શ્રી અરવિંદભાઈ રાણા, કીર્તિભાઈ કાંતિભાઈ બલ્લર, શ્રી વિવેકભાઈ પટેલ, શ્રી સંગીતાબેન પાટીલ, શ્રી જંકનાબેન પટેલ, કિશોરભાઈ કાનાણી, મોહનભાઈ ડોડિયા, સૌ સંગઠનના પદાધિકારીશ્રીઓ, વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત સૌ નાગરિક ભાઈઓ બહેનો, प्रेस मीडिया मित्रों सौने मारा नमस्कार अने नवरात्रि खूब शुभेच्छाओं साथे आप सौनु आ कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करूं छूं। सौ प्रथम तो वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदी नो देशना 80 करोड़ गरीब लोको नवरात्रि अने दिवाળી नो उत्सव ઊંઘભેર ઉજવી શકે તે માટે પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના વધુ લંબાવી આપવાની મહત્વપૂર્ણ ભેટ આપવા બદલ હું આપ સૌ વતી એમનો ખૂબ ખૂબ હૃદયથી આભાર માનું છું। વડાપ્રધાન શ્રી જ્યારે જ્યારે ગુજરાત આવે ત્યારે વિકાસના કામોની અનેક ભેટો આપણને આપે છે। આ વખતે તેઓ નવરાત્રિમાં પધારે છે, પરંતુ સુરતમાં આજે દિવાળી જેવો उत्साहનું વાતાવરણ છે। केंद्र सरकार, राज्य सरकार અને મહાનગરપાલિકાના રૂપિયા 3472 કરોડના અનેક કામો જેવા કે પાણી પુરવઠા યોજનાઓ, હજીરા રોપેક્સ ટર્મિનલ, બાયોડાયવર્સિટી પાર્ક સહિતના વિકાસ કામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વરદ હસ્તે થવાનું છે। સુરતમાં એક સમયે તાપીમાં આવેલા પૂર પછી સુરતે વડાપ્રધાનશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ વિકાસની વાટ પકડી છે અને ક્યાંય પાછું વળીને જોયું નથી। આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં 2 દાયકાથી વધુ સમયથી સુરત શહેરની નવી ઓળખ ઊભી થઈ છે। આજે સ્વચ્છતામાં સુરત દેશમાં બીજા ક્રમે છે। સુરત માટે આજે દેશનું ડાયમંડ સિટી, બ્રિજ સિટી ઓફ ઇન્ડિયા, સ્માર્ટ સિટી અને ક્લીન સિટી જેવા અનેક નવા નામોનો ઉપયોગ
થાય છે. હવે ક્લીન સિટીને આપણે ગ્રીન સિટી બનાવવાના લક્ષ્ય સાથે આગળ વધી રહ્યા છીએ. 139 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે 87 હેક્ટર જમીનમાં આકાર પામનારા નવા બાયોડાયવર્સિફિકેશન પાર્કનું આજે વડાપ્રધાન શ્રી ખાતમુહૂર્ત કરવાના છે. આ પાર્ક જળ પ્રદૂષણ અટકાવવાની સાથે સાથે પર્યાવરણની જાળવણીથી ગ્રીન સિટીનો આપણો ઉદ્દેશ પાર પાડશે. સુરત મહાનગરે સર્વગ્રાહી વિકાસનો પથ વડાપ્રધાનશ્રીના દ્રષ્ટિવંત નેતૃત્વમાં કંડાર્યો છે. સુરતના પોટેન્શિયલ અને સુરતીઓની ખમીર વડાપ્રધાન શ્રી સુપેરે પરિચિત છે. તેમણે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટમાં ખાસ ડાયમંડ સમિટ શરૂ કરી અને તેનું આયોજન પણ સુરતમાં કર્યું. સુરતને નવી ઓળખ આપનાર ડાયમંડ બુર્સ અને ડ્રીમ સિટીએ પણ આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીનો ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ છે. જેમ જેમ આ ડાયમંડ બુર્સનું કામ આગળ વધતું જાય છે તેમ તેમ સુરતની ચમક દમક પણ વધી રહી છે. આજે આ ડ્રીમ સિટીમાં રૂપિયા 113 કરોડના કામોનું લોકાર્પણ અને 256 કરોડના કામોનું ખાતમુહૂર્ત થઈ રહ્યું છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈના દિશા દર્શનમાં ગુજરાતને ડબલ એન્જિન સરકારનો બેવડો લાભ મળતો થયો છે. આજે વધુ એક લાભ હજીરા રોપેક્સ ફેરી સર્વિસ ટર્મિનલથી આપણને મળવાનો છે. આ રોપેક્સ સેવાના પરિણામે રાજ્યના એગ્રીકલ્ચર હબ એવા સૌરાષ્ટ્રનું કોમર્શિયલ હબ એવા સુરત સાથે ટૂંકા અંતરે જોડાણ થયું છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં ભારત સરકાર પર્યાવરણ યુક્ત ઈંધણ અને ઇલેક્ટ્રિક વેહિકલને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે. આ કડીમાં આગળ વધતા સુરત શહેરમાં આજે 25 પબ્લિક ઈવી ચાર્જિંગ સ્ટેશનનું લોકાર્પણ થઈ રહ્યું છે અને સાથે સાથે 500 પબ્લિક ઈવી ચાર્જિંગ સ્ટેશન સ્થાપિત કરવાનું લક્ષ્ય પણ નિર્ધાર કર્યો છે. એટલું જ નહીં, 2023 સુધીમાં સુરતમાં જાહેર પરિવહન સેવામાં 80% ઇલેક્ટ્રિક બસોનો ઉપયોગ શરૂ થઈ જશે. સુરત શહેર પોતાના હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટના પરિણામે દેશના અન્ય શહેરો માટે એક મોડેલ સિટી બન્યું છે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીએ લોકોને ઘરે શુદ્ધ પીવાનું પાણી મળે તે માટે નલથી જલ અભિયાન હાથ ધર્યું છે. રાજ્ય સરકારે નલ સે જલ અભિયાનમાં 98% સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે અને ટૂંક જ સમયમાં 100% લક્ષ્ય હાંસલ કરવાની દિશામાં સરકાર કામ કરી રહી છે. આ દિશામાં સુરત જિલ્લાના 183 ગામોની ભવિષ્યની વસ્તીને ધ્યાનમાં લઈને પીવાના પાણીની 4 પાણી પુરવઠા યોજનાઓના અપગ્રેડેશનનું કામ રૂપિયા 324 કરોડથી વધુના ખર્ચે હાથ ધરાવવાનું છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં ભારતે અમૃતકાળમાં પ્રવેશ કર્યો છે. આ અમૃતકાળ માટે આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીએ 5 સંકલ્પો આપણને આપ્યા છે. જેમાંનો પહેલો સંકલ્પ છે વિકસિત ભારતનું નિર્માણ કરવું. સ્વચ્છ, સુંદર, સ્માર્ટ અને સુવિધાયુક્ત શહેરો વિના વિકસિત ભારતની કલ્પના સાકાર થઈ શકે નહીં. આપણા શહેરોમાં ઇઝ ઓફ લિવિંગ માટે આપણે સૌ સાથે મળી કટિબદ્ધ થઈએ એ જ અભ્યર્થના સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આપનો. અને હવે અવિરત વિકસી રહેલા સુરત મહાનગરના પાવન આંગણે કુલ રૂપિયા 3472.54 કરોડના વિકાસ કાર્યોનું રિમોટના માધ્યમથી લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવા સાદર વિનંતી કરીએ માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને. साथियों, हमने हर उद्यम को गले लगाने वाली सूरत स्पिरिट, ये सूरत स्पिरिट पे बल दिया. आज सूरत देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर है. इतना ही नहीं, आज सूरत दुनिया का चौथा सबसे तेजी से विकसित होता शहर भी है. सूरत भूमि पावन, तापी तट शुभसार, प्रगति ज्યાં નિરંતર અને સમૃદ્ધિ અપાર. માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના અવિરત પ્રયાસોથી
ગુજરાતમાં ચાલતી ડબલ એન્જિન સરકાર દ્વારા કંડારાયેલ વિકાસના ફાસ્ટ ટ્રેક પર હરણફાળ ભરી રહ્યું છે સ્માર્ટ સિટી સુરત. બહુજન હિતાય બહુજન સુખાયના ધ્યેય મંત્રને ચરિતાર્થ કરતા અનેક વિકાસ કાર્યો અને પ્રકલ્પો આજે સુરતવાસીઓને થઈ રહ્યા છે સમર્પિત. સુરતને વિશ્વ ફલક પર શિરમોર સ્થાપિત કરતી ડ્રીમ સિટી ખાતે ભવ્ય મેઇન એન્ટ્રન્સ ગેટ તથા વિવિધ માળખાકીય સુવિધાઓના લોકાર્પણ અને વિવિધ પ્રકલ્પોના ખાતમુહૂર્ત કુલ ₹369 કરોડના ખર્ચે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીના વરદ હસ્તે સંપન્ન થયા. ₹70 કરોડના ખર્ચે નિર્મિત હજીરા રોપેક્સ ટર્મિનલનું લોકાર્પણ થતા રોરો ફેરી દ્વારા થતા માલ સામાન અને યાત્રિકોની અવરજવરને વધુ સુલભ અને સરળ બનાવવામાં મળી છે સફળતા. પાણી પુરવઠાના કુલ ₹996 કરોડના ખર્ચે લોકાર્પિત અને ખાતમુહૂર્ત થનાર વિવિધ પ્રકલ્પો પાણીદાર સુરત બનાવવાના સંકલ્પને સિદ્ધિ તરફ લઈ જશે. શહેરના વેસ્ટ ઝોનમાં ₹271 કરોડના ખર્ચે સિરામિક બેઝડ મેમ્બ્રેન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી એક્ટિવેટેડ કાર્બન સાથેનો પીફાસ નિવારણ થઈ શકે તેવો દેશભરનો સૌ પ્રથમ વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ સુરત શહેરમાં આકાર લેશે. GWSSBના કાર્યો હેઠળ 84 અને ઓલપાડ ખાતે વરિયાવ RWSS ફેઝ 1 અને 2 તેમજ માંડવી માંગરોળ અને ઉમરપાડા ખાતે બોરસદ દેગડિયા RWSS ફેઝ 1 અને 2 ના ખાતમુહૂર્તનું કાર્ય સંપન્ન થયું છે. ₹108 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલ નવીનતમ ભવન સુરત અર્બન ઓબ્ઝર્વેટરી એન્ડ ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ સેન્ટરમાં 1000 સ્ક્વેર ફીટની 2 વિશાળ વિડીયો વોલ્સ મારફત સમગ્ર શહેરનું મોનિટરિંગ તેમજ લગતી દરેક સેવાઓની દેખરેખ રાખવામાં આવશે. સુરતની ધરોહર અને ઇતિહાસ જાળવીને ઉભેલા સુરતના કિલ્લાનું ₹32 કરોડના ખર્ચે બીજા તબક્કાનું પુનઃ નિર્માણ કાર્ય પૂર્ણ થતા સંપૂર્ણ કિલ્લા પરિસરનો ભવ્ય વારસો સુરતવાસીઓને થયો છે અર્પણ. કાંકરા ખાડીને લગોલગ 87.50 હેક્ટર ખુલ્લી જમીનમાં ₹139.15 કરોડના ખર્ચે સાકાર થનાર વાઇલ્ડ વેલી બાયોડાયવર્સિટી પાર્કનું ખાતમુહૂર્ત ગ્રીન સુરતને એક આગવી ઓળખ આપશે. સ્વસ્થ સુરતના મંત્રને ચરિતાર્થ કરતા ₹253 કરોડના ખર્ચે કોયલી અને મીઠી ખાડીના વિસ્તારોના ક્રીક ડેવલપમેન્ટ વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ સંપન્ન થયું છે. આઇકોનિક પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય કેબલ સ્ટેડ બ્રિજ પર ધ્યાન આકર્ષક લાઇટિંગ તેમજ અત્યાધુનિક સ્ટ્રક્ચરલ હેલ્થ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ તથા PPP ધોરણે બનેલા એરપોર્ટ આઇકોનિક રોડનું લોકાર્પણ સહિત કુલ ₹169 કરોડના ખર્ચે સાકાર થયેલા અને સાકારિત થનારા કામો શહેરીજનોની સુવિધામાં અનેરો વધારો કરશે. સુરત શહેરે ગુજરાત ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ પોલિસી અંતર્ગત 500 પબ્લિક ચાર્જિંગ સ્ટેશન બનાવવાનો ધ્યેય રાખ્યો છે. પ્રથમ તબક્કામાં વિવિધ જાહેર સ્થળો પર 25 પબ્લિક ચાર્જિંગ સ્ટેશનનું લોકાર્પણ અને બીજા 25 પબ્લિક ચાર્જિંગ સ્ટેશનનું ખાતમુહૂર્ત તથા બસ ડેપો વર્કશોપ અને ટર્મિનલ સહિતની કુલ ₹51 કરોડની વિવિધ પર્યાવરણલક્ષી સુવિધાઓ સુરતવાસીઓને સ્વચ્છ આબોહવા પ્રદાન કરશે. સ્વસ્થ સુરત માટે સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટના કુલ ₹890 કરોડના કામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત સંપન્ન થયું છે. અસરમાં ભટાર અને બમરોલી ખાતે સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટની ક્ષમતા વધારવાનું કાર્ય તેમજ વાલક ક્રીક ખાતે સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટનું નિર્માણ કાર્ય પૂર્ણ થયું છે. 259 કરોડના ખર્ચે શિક્ષણલક્ષી વિકાસ કાર્યો શહેરીજનોની સુવિધામાં કરશે વધારો. લિંબાયત ખાતે મુક્તિધામ, સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ સાથે નવું ફાયર સ્ટેશન, આરોગ્ય શિક્ષણ ક્ષેત્રે સ્મીમેરમાં 17 માળની ફર્નિચર સાથેની PG હોસ્ટેલ અને નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં 1200 વિદ્યાર્થીઓ માટે 12 માળની બોયઝ એન્ડ ગર્લ્સ હોસ્ટેલ સહિત કુલ ₹195 કરોડના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત સંપન્ન થયા છે. કતારગામમાં ડભોલી ખાતે અત્યાધુનિક સુવિધાયુક્ત લાઇબ્રેરી તથા મનોરંજન કેન્દ્ર નિર્માણ પામશે. ₹12 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ પામેલ ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી IIIT નું પ્રથમ ચરણ પૂર્ણ થયું છે. ₹112 કરોડના ખર્ચે વિવિધ બ્રિજનું નિર્માણ કાર્ય તથા સાયણ ખાતે પાવરલૂમ ક્લસ્ટર ડેવલપમેન્ટનું ખાતમુહૂર્ત સંપન્ન થયું છે. માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના માર્ગદર્શન હેઠળ સુરત શહેરમાં સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેક્ટ
અમૃત પ્રોજેક્ટ અને સ્વચ્છ ભારત મિશન પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ગુજરાત શહેરી વિકાસ યાત્રા અવિરતપણે ચાલી રહી છે. આમ કુલ રૂપિયા 3472.54 કરોડના ખર્ચે જનહિતલક્ષી વિવિધ વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વરદ હસ્તે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને અન્ય મહાનુભાવોની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં સંપન્ન થયું છે. સમગ્ર સુરત ક્ષેત્રમાં વિવિધ પ્રકલ્પો લઈ રહ્યા છે આકાર. સુરતવાસીઓના સપના થઈ રહ્યા છે સાકાર. પ્રત્યેક સુરતવાસીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી આપનો. ગુજરાત જેમની જન્મભૂમિ છે અને ભારત એમની કર્મભૂમિ છે. આજે સમગ્ર દેશમાં જેમના નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શન હેઠળ પ્રયાસથી પરિણામ સુધીની વિકાસ યાત્રા પ્રશસ્ત છે એવા ગુજરાત અને ભારત દેશની સાફલ્ય ગાથાના શિલ્પી, ગુજરાતના પનોતા પુત્ર, દેશના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને ખૂબ બધી તાળીઓના હર્ષનાદ સાથે સાદર આમંત્રિત કરીએ આપણને સૌને માર્ગદર્શિત કરવા. भारत माता की, भारत माता की. आप સૌ સુરતવાસીઓને નવરાત્રિની અનેક અનેક શુભકામનાઓ. वैसे नवरात्रि के समय मेरे जैसे व्यक्ति को सूरत आना आनंददायक है, अच्छा लगता है. लेकिन नवरात्रि का व्रत चलता हो तब सूरत आने में थोड़ा कठिन लगता है. सूरत आओ और सुरती खाना खाए बिना जाओ. ये मेरा सौभाग्य है कि नवरात्रि के इस पावन अवसर के समय मैं आज और कल गुजरात की धरती पर इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल संस्कृति और आस्था से जुड़े कई बड़े आयोजनों का हिस्सा बनूंगा. गुजरात के गौरव को और बढ़ाने का ये सौभाग्य मिलना, आपके बीच आना और आप सबके आशीर्वाद लेना, आपका ये प्यार, आपका ये उत्साह दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है. गुजरात के लोगों का, सूरत के लोगों का धन्यवाद करने के लिए मेरे शब्द भी कम पड़ रहे हैं. इतना प्यार आपने दिया. सूरत में विकास का लाभ जिस तरह हर घर तक पहुंच रहा है, वो जब मैं देखता हूं, सुनता हूं, तो मेरी खुशी अनेक गुना बढ़ जाती है. इसी क्रम में आज सूरत के विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया गया है.
इनमें से अधिकतर प्रोजेक्ट सामान्य सूरतवासियों को, मध्यम वर्ग को, व्यापारी वर्ग को ये अनेक प्रकार की सुविधाएं और लाभ पहुंचाने वाले हैं। मुझे बताया गया कि अमृत सरोवर 75 अमृत सरोवर सूरत में उसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। इसके लिए भी जिले के सभी साथी, शासन, प्रशासन, हर कोई और मेरे सूरतवासी भी बधाई के पात्र हैं। साथियों, सूरत शहर लोगों की एकजुटता और जन भागीदारी दोनों का बहुत ही शानदार उदाहरण है। हिंदुस्तान का कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा जिसके लोग सूरत की धरती पे न रहते हो। एक प्रकार से मिनी हिंदुस्तान सूरत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये शहर, सूरत इस बात के लिए मैं हमेशा उसका गर्व करता हूं, ये शहर श्रम का सम्मान करने वाला शहर है। यहां टैलेंट की कद्र होती है, प्रगति की आकांक्षाएं पूरी होती है, आगे बढ़ने के सपने साकार होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो विकास की दौड़ में पीछे छूट जाता है, ये शहर उसे ज्यादा मौका देता है, उसका हाथ थामकर आगे ले जाने का प्रयास करता है। सूरत की यही स्पिरिट आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, इस सदी के शुरुआती दशकों में जब दुनिया में 3 P यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की चर्चा होती थी, तब मैं कहता था कि सूरत 4 P का उदाहरण है। 4 P यानी पीपल्स, पब्लिक, प्राइवेट पार्टनरशिप। यही मॉडल सूरत को विशेष बनाता है। सूरत के लोग वो दौर कभी भूल नहीं सकते जब महामारियों को लेकर, बाढ़ की परेशानियों को लेकर यहां अपप्रचार को हवा दी जाती थी। उस कालखंड में यहां के व्यापारी और व्यापारी समाज के अनेक लोगों से मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था कि अगर सूरत शहर की ब्रांडिंग हो गई तो हर सेक्टर, हर कंपनी की ब्रांडिंग अपने आप हो जाएगी। और आज देखिए, सूरत के आप सभी लोगों ने ऐसा करके दिखा दिया है। मुझे खुशी है कि आज दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होते शहर में सूरत का नाम है और इसका लाभ यहां हर व्यापार कारोबार को हो रहा है। भाइयों और बहनों, पिछले 20 वर्षों में सूरत ने देश के बाकी शहरों की अपेक्षा बहुत अधिक प्रगति की है, तेजी से प्रगति की है।
आज हम अक्सर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में सूरत का गर्व से जिक्र करते हैं, लेकिन ये सूरत के लोगों की निरंतर मेहनत का परिणाम है। सैकड़ों किलोमीटर से अधिक के नए ड्रेनेज नेटवर्क ने सूरत को एक नया जीवनदान दिया है। 2 दशकों में इस शहर में जो सीवरेज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी बनी है, उससे भी शहर को साफ सुथरा रखने में मदद मिली। आज भाकर और बामरोली में नई कैपेसिटी जुड़ गई है। यहां जिन साथियों को काम करते हुए 20 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, वो इस बदलाव के बहुत बड़े साक्षी हैं। बीते वर्षों में सूरत में झुग्गियों की संख्या में भी काफी कमी आई है। इन 2 दशकों में यहां गरीबों के लिए, झुग्गियों में रहने वालों के लिए करीब 80,000 घर बनाए गए हैं। सूरत शहर के लाखों लोगों के जीवन स्तर में इससे सुधार आया है। साथियों, डबल इंजन की सरकार बनने के बाद और घर बनाने में भी तेजी आई है और सूरत के गरीबों, मिडिल क्लास को दूसरी अनेक सुविधाएं भी मिलने लगी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में अभी तक लगभग 4 करोड़ गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मिल चुका है। इसमें 32 लाख से अधिक मरीज गुजरात के और लगभग 1.25 लाख मरीज ये मेरे सूरत के हैं। वहीं पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी, पटरी, ठेले पर काम करने वाले देश के लगभग 35 लाख साथियों को अभी तक बैंकों से बिना गारंटी का सस्ता ऋण मिल चुका है। अभी शायद आपने दुनिया में बहुत जाने माने दानवीर बिल गेट्स का एक आर्टिकल पढ़ा होगा। उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, एक लेख लिखा है, उसमें इन 7 चीजों का उल्लेख किया है उन्होंने। साथियों, इसमें गुजरात के 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को और सूरत के करीब 40,000 साथियों को इसकी मदद मिली है। साथियों, सूरत शहर के पश्चिमी हिस्से रांदेर, अड़ायण, पाल, हजीरा, पालनपुर, जहांगीरपुरा और दूसरे क्षेत्रों में आज जितनी चहल पहल दिखती है, वो 20 साल के अखंड एकनिष्ठ परिश्रम का परिणाम है। शहर के अलग अलग हिस्सों में तापी पर आज दर्जन भर से ज्यादा पुल है, जो शहर को भी जोड़ रहे हैं और सूरत वासियों को समृद्धि से भी जोड़ रहे हैं। इस स्तर की इंटरसिटी कनेक्टिविटी बहुत कम देखने को मिलती है। सूरत सही मायने में सेतुओं का शहर है, जो मानवीयता, राष्ट्रीयता और समृद्धि की खाइयों को पाट करके जोड़ने का काम करता है। भाइयों और बहनों, आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, वे सभी
सूरत की इस फ्री पहचान को सशक्त करने वाले हैं। सूरत के कपड़ा और हीरा कारोबार से देश भर के अनेक परिवारों का जीवन चलता है। ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाएगा तो सूरत विश्व के सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक डायमंड ट्रेडिंग हब के रूप में विकसित होने वाला है। वो दिन दूर नहीं जब सूरत दुनिया भर के डायमंड कारोबारियों कंपनियों के लिए एक आधुनिक ऑफिस स्पेस के रूप में पहचाना जाएगा। इतना ही नहीं, कुछ महीने पहले ही केंद्र सरकार ने सूरत पावरलूम मेगा क्लस्टर, ये बहुत बड़ा निर्णय है भारत सरकार का, पावरलूम मेगा क्लस्टर उसकी स्वीकृति दे दी है। और इससे सायन हो, ओलपाड़ हो, इन क्षेत्रों में पावरलूम वालों को जो समस्याएं आती थी वो समस्याएं कम होगी। यही नहीं, इससे प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान होगा। साथियों, सुरती लोगों की खासियत है, सुरती लाला એને મોજ કર્યા વગર ન ચાલે। અને બહારથી આવનારો માણસ પણ જોતામાં સુરતી લાલાના રગે રગાઈ જાય। અને હું તો કાશીનો એમપી છું, એટલે લોકો રોજ મને સંભળાવે સુરતનું જમણ, કાશીનું મરણ। અને સાંજ પડી નથી कि ताप्ती नदी ने आसपास इन इलाकों में घूमकर ठंडी हवा का लुत्फ उठाना और कुछ खा पी करके ही घर लौटना। इसलिए ताप्ती के किनारों सहित सूरत को और आधुनिक बनाने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भूपेंद्र भाई और सीआर पाटिल और कॉरपोरेशन से जुड़े लोग, यहां के विधायक, इन सबको मैं बधाई देता हूं आपके इन प्रयासों के लिए। बायोडायवर्सिटी पार्क प्रोजेक्ट के बनने से सूरत वासियों की टहलने की इस आदत को और सुविधा मिलेगी। उठने बैठने सीखने के लिए नए स्थान मिलेंगे। भाइयों और बहनों, एयरपोर्ट से शहर को जोड़ने वाली सड़क जो बनी है वो सूरत की संस्कृति, समृद्धि और आधुनिकता को दर्शाती है। लेकिन यहां अनेक साथी ऐसे हैं जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए भी हमारे लंबे संघर्ष को देखा है, उसका हिस्सा भी रहे हैं। तब जो दिल्ली में सरकार थी, हम उनको बताते बताते थक गए कि सूरत को एयरपोर्ट की जरूरत क्यों है, इस शहर का सामर्थ्य क्या है। आज देखिए कितनी ही फ्लाइट यहां से चलती हैं, कितने ही लोग हर रोज यहां एयरपोर्ट पर उतरते हैं। आपको याद होगा यही स्थिति मेट्रो को लेकर के भी थी। लेकिन आज जब डबल इंजन की सरकार है तो स्वीकृति भी तेज गति से मिलती है और काम भी उतनी ही तेजी से होता है। भाई और बहनों, व्यापार कारोबार में लॉजिस्टिक का कितना महत्व होता है ये सूरत वाले अच्छे से जानते हैं। नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी से सूरत को बहुत लाभ होने वाला है।
मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए भी सूरत में एक बड़ी योजना पर काम शुरू हो चुका है। गोगा हजीरा रोपेक्स फेरी सर्विस ने सौराष्ट्र के कृषि हब को सूरत के बिजनेस हब से जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गोगा और हजीरा के बीच रोरो फेरी सर्विस की वजह से लोगों का समय भी बच रहा है और पैसा भी बच रहा है। सड़क के रास्ते गोगा और हजीरा के बीच की दूरी करीब करीब 400 किलोमीटर के आसपास होती है, जबकि समंदर के रास्ते यही दूरी कुछ ही किलोमीटर हो जाती है। अब ये इससे बड़ी सुविधा क्या हो सकती है। इससे वजह से जहां पहला गोगा से हजीरा आने जाने में 10-12 घंटे लगते थे, वहीं अब ये सफर 3.5-4 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है। हम फेरी की वजह से भावनगर, अमरेली और सौराष्ट्र के दूसरे हिस्सों से सूरत आए लोगों को बहुत लाभ होगा। अब परमानेंट टर्मिनल तैयार होने के कारण आने वाले दिनों में और ज्यादा रूट खुलने की संभावना बढ़ी है। इससे यहां के उद्योगों को, किसानों को पहले से ज्यादा लाभ होगा। साथियों, हमारी सरकार सूरत के व्यापारियों, कारोबारियों की हर आवश्यकता को देखते हुए काम कर रही है, नए नए इनोवेशन कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं कि सूरत के टेक्सटाइल का एक बड़ा बाजार काशी और पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। यहां से बड़ी संख्या में ट्रकों के जरिए सामान पूर्वी यूपी भेजा जाता रहा है। अब रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट ने मिलकर एक नया समाधान भी खोजा है, एक नया इनोवेशन किया है। रेलवे ने अपने कोच की डिजाइन को इस तरह से बदला है कि उसमें आसानी से कार्गो फिट हो जाता है। इसके लिए खास तौर पर 1 टन के कंटेनर भी बनाए गए हैं। ये कंटेनर आसानी से चढ़ाए और उतारे जा सकते हैं। शुरुआती सफलता के बाद अब सूरत से काशी के लिए पूरी एक नई ट्रेन ही चलाने की कोशिश हो रही है। ये ट्रेन सूरत से माल सामान ढो करके काशी तक जाया करेगी। इसका बहुत बड़ा लाभ सूरत के व्यापारियों को होगा, यहां के कारोबारियों को होगा, यहां के मेरे श्रमिक भाइयों बहनों को होगा। बहुत जल्द सूरत बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल, बिजली से चलने वाली गाड़ियों के लिए भी ये सूरत पहचाना जाएगा। सूरत की नित्य नई नई पहचान बनती है। कभी सिल्क सिटी, कभी डायमंड सिटी, कभी सेतु सिटी, और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला सिटी के रूप में जाना जाएगा। केंद्र सरकार आज पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने के लिए सरकारों को मदद दे रही है। सूरत इस मामले में भी देश के बाकी शहरों की तुलना में बहुत तेजी से काम कर रहा है और इसमें सूरत को बधाई देता हूं इस काम के लिए। आज सूरत शहर में 25 चार्जिंग स्टेशन का लोकार्पण और इतने ही स्टेशनों का शिलान्यास हुआ है। आने वाले कुछ समय में सूरत में 500 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की तरफ ये बहुत बड़ा कदम है। साथियों, बीते 2 दशकों से
विकास के जिस पथ पर सूरत चल पड़ा है वो आने वाले सालों में और तेज होने वाला है। यही विकास आज डबल इंजन सरकार पर विश्वास के रूप में झलकता है। जब विश्वास बढ़ता है तो प्रयास बढ़ता है और सबका प्रयास से राष्ट्र के विकास की गति तेज होती है। इस गति को हम बनाए रखेंगे। इसी आशा के साथ सूरत वासियों जेटलो आभार मानू એટલો ઓછો। સુરતે ઉદાહરણરૂપ પ્રગતિ કરી છે દોસ્તો। હિન્દુસ્તાનમાં સુરતના સમકક્ષ અનેક શહેરો છે, સુરતે બધાને પાછળ પાડી દીધા છે અને આ શક્તિ ગુજરાતમાં જ છે દોસ્તો। આ ગુજરાતની શક્તિને ઊંડી આંચ ના આવે, ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાને કોઈ ઉણપ ન રહે, એના માટે કોટી કોટી ગુજરાતીઓ પ્રતિબદ્ધ છે, સંકલ્પબદ્ધ છે। એ જ વિશ્વાસ સાથે ફરી એકવાર आप सबने खूब खूब आभार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। મોદી 2 દિવસીય ગુજરાતની મુલાકાતે અત્યારે તેઓ સુરત ખાતે સભા સ્થળે ઉપસ્થિત છે। જે પ્રકારે આપ જોઈ શકો છો લાખોની સંખ્યામાં લોકો ત્યાં પહોંચ્યા છે। નવરાત્રી પર સુરતને વિકાસની મોટી ભેટ પીએમ મોદી દ્વારા આપવામાં આવી છે। સાથે જ તેમણે જે સંબોધન પણ કર્યું છે, આ સંબોધનની જો વાત કરીએ અલગ અલગ જે વિકાસની ભેટ છે તેમણે આપી છે સુરતને। સાથે જ ભાષણ તેમણે જે કર્યું છે, જે સંબોધન તેમણે જણાવ્યું છે તેમાં વાત કરીએ તો સુરત વિશે તેમણે 10 મોટી વાત જણાવી છે। તેમના ભાષણમાં 10 મોટી વાતની વાત કરીએ તો સુરતમાં વિકાસની જે સ્પીડ છે તે જોઈને તેઓ ખૂબ જ ખુશ છે, તે પ્રકારનું તેમણે જણાવ્યું છે। સાથે જ સુરતમાં હવે જે વિકાસ છે તે ઘરે ઘરે પહોંચ્યો છે। સુરત શ્રમનું સન્માન કરનાર શહેર બન્યું છે। તેમણે જે સંબોધન કર્યું છે તેમાં તેમણે જણાવ્યું છે કે સોનાની મૂરત ગણાય છે સુરત। સુરતીઓમાં પણ એક અનેરો આનંદ અત્યારે છવાયો છે। સુરતમાં ગરીબો માટે લગભગ 80,000 ઘર બનાવાયા છે। સાથે જ સુરતમાં વિકાસની જે સ્પીડ છે, જે ગતિ છે તે જોઈને હું ખૂબ જ ખુશ થયો છું। વિકાસ હવે ઘરે ઘરે પહોંચ્યો છે તેવું વડાપ્રધાન મોદી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે। જે પ્રકારના દ્રશ્યો અત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો, વડાપ્રધાન મોદી સભા સ્થળે પહોંચ્યા તે પહેલા તેમણે રોડ શો પણ કર્યો હતો। લગભગ 2.5 કિલોમીટરનો આજે રોડ શો હતો, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ત્યાં જોડાયા હતા અને આ રોડ શોમાં લોકોનું અભિવાદન પણ તેમણે ઝીલ્યું હતું। દૂર દૂરથી લોકો જોવા મળ્યા હતા અને સાથે જ અલગ અલગ રાજ્યની જે વેશભૂષા છે તેમાં પણ લોકો એ અલગ અલગ વેશભૂષામાં પીએમ મોદીનું સ્વાગત કરવા માટે પહોંચ્યા હતા। સુરત એરપોર્ટ ખાતે જ્યારે તેઓ પહોંચ્યા ત્યારે વડાપ્રધાન જ્યારે પહોંચ્યા હતા ત્યારે મુખ્યમંત્રી અને ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલ દ્વારા તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ તેઓ રોડ શો યોજ્યો હતો।